Good morning, brothers and sisters. सुप्रभात भाइयों और बहनों। I'm thankful to God and also to Pastor Franco और मैं परमेश्वर की ओर धन्यवादित हूँ और पास्टर फ्रैंको की ओर भी for giving me this opportunity to share what God placed on my heart. कि मुझे मौका मिला ये बांटने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पर रखा है। Thank you, Errol, for those kind words which didn't end. और एरिल उन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे शब्द थे वो। We had a lovely time of worship this morning. और आराधना का बहुत ही खूबसूरत समय रहा आज की सुबह। Thank you, Grace, for ministering to God and to us through worship. और ग्रेस बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर की सेविकाई और हमारी सेविकाई की आपने आराधना के द्वारा। As well as the team. और पूरे समूह को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। I trust God has been speaking to us today. और मेरा भरोसा है परमेश्वर हमसे बात कर रहा है आज। We are His children. हम परमेश्वर की संतान है। We are chosen by Him to fulfill His will in our lives. और हमें परमेश्वर के द्वारा चुना गया है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो जाए। The call to spread the gospel to the ends of the world. और हमें बुलाया गया है कि संसार भर में हम सुसमाचार फैला दें। Do we believe in this truth? क्या ये सच्चाई पर हम विश्वास करते हैं? Do we truly love our God? क्या हम सच में हमारे परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Do we love Him to the point that we are wanting to do His will? क्या इस हद तक प्रेम करते हैं कि हम उसकी इच्छा पूरी करना चाहें? Just as Jesus did on the cross? जैसे यीशु ने क्रूस पर किया। Or are we hesitant somewhere? या ऐसा है कि हम कहीं हिचकिचाते हैं? What is holding us back? कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक रही है? My topic today is love God or love idolatry. और मेरा आज का शीर्षक है परमेश्वर से प्रेम करो या मूर्ति पूजा से। Come, let us read from our Bible the Gospel of Matthew 22 verses 37 to 38. आइए हम मत्ती की किताब से देखते हैं 22वां अध्याय वचन 37 से 38। Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and the great commandment. और यीशु ने उनसे कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से प्रेम रखना, और यह पहली और सबसे महान ऐसी आज्ञा है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we come before you today in the name of your Son, our Savior, Lord Jesus Christ, and we ask you to help us understand what it means to love you. And we ask you to change our hearts and our minds through your word and through your Holy Spirit. We thank you for saving us, and we thank you for offering, and we want to offer ourselves to you as a sacrifice, Lord, willing to do your will, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. What do we understand from this commandment? ये आज्ञा से हम क्या समझते हैं? Why is it so important for our Christian life? और ये हमारे मसीह जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? To understand this, let's go to the Old Testament. ये समझने के लिए आइए हम पुराने नियम की ओर बढ़ते हैं। The first of the 10 commandments. और पहली आज्ञा में से 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा ये है Exodus 20 verses 2 to 6. निर्गमन का 20वां अध्याय वचन 2 से 6। It says, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations, to those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. निर्गमन 20 वचन 2 से 6 कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना,
तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। Amen. This first commandment was part of the covenant God made with man after Adam sinned. और अदम के पाप के बाद परमेश्वर द्वारा बनाई हुई वाचा का पहला वादा, ये पहली आज्ञा है। Our God is a jealous God. हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। He does not tolerate any form of idolatry. वो किसी भी तरह की मूर्ति पूजा को सहन नहीं करता है। The failure to keep this commandment results in a curse for generations. और ये आज्ञा का पालन करने में अगर हम सक्षम नहीं होते हैं तो हमारी पीढ़ी पीढ़ी पर उसका श्राप या कोप उतर आता है। We see in the Old Testament, Israel was found guilty of breaking this commandment right through the Old Testament more than any other commandment. और हम देखते हैं कि पुराने करार में इजरायलियों ने ये आज्ञा को तोड़ा था, किसी भी और ज्यादा आज्ञा से ज्यादा इसी आज्ञा को तोड़ा था। We today are no different. और हम आज कोई अलग नहीं है। We say in our hearts, we are not like those who worship idols. और हम हमारे हृदय में कहते हैं कि हम उनकी तरह नहीं है जो मूर्ति पूजा करते हैं। We have given up all forms of idol worship. और हमने सभी प्रकार का मूर्ति पूजा छोड़ दिया है। We don't light candles. और हमें कैंडल नहीं पसंद है, मोमबत्ती नहीं पसंद है। We don't offer incense at any statue or image. और हम किसी भी प्रकार के धूप की या प्रतिमा को अर्पण नहीं करते हैं। We may also say we don't bow down to any image. और हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी प्रतिमा के आगे दंडवत नहीं होते हैं। Yet in our inmost parts, we have hidden idols. या ऐसा है कि हमारे पास छिपे हुए मूर्तियां हैं। We secretly worship these idols, knowingly or unknowingly. और हम जाने में या अनजाने में इन मूर्तियों की पूजा करते हैं। We place people before God. हम लोगों को परमेश्वर के आगे रखते हैं। Material objects are more dear than God. और चीजें हमारे लिए परमेश्वर से ज्यादा प्रिय होती है। Our thoughts, our knowledge, our experience is more precious than the word of God. और परमेश्वर के वचन से ज्यादा हमारे अनुभव या हमारे विचार हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। All these are our present idols. और देखा जाए तो ये हाल ही के हमारे लिए मूर्ति के बराबर है अभी। Idolatry was forbidden by God. और परमेश्वर ने मूर्ति पूजा को नकारा था, उसका तिरस्कार किया था। We read it in Deuteronomy 4 verses 15 to 19. और हम व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय वचन 15 से 19 में ये देखते हैं। It says, take careful heed to yourselves, for you saw no form when the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire, lest you act corruptly and make for yourself a carved image in the form of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any animal that is on the earth, or the likeness of any winged bird that flies in the air, the likeness of anything that creeps on the ground, or the likeness of any fish that is in the water beneath the earth. And take heed, lest you lift your eyes to heaven, and when you see the sun, the moon, and the stars, all the host of heaven, you feel driven to worship them and serve them, which the Lord your God has given to all the peoples under the whole heaven as a heritage. व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय वचन 15 से 19। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न देख पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। वचन 19।
वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारांगण देखो, तब बहक कर उनको दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। Amen. Doing anything that is forbidden speaks of disobedience to God's word. और किसी भी बात जिसे नकारी की गई है और अगर हम वो करें तो हम परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहे हैं। The true God, Yahweh, revealed first in creation and then now fully in the scripture, is holy. और यावे परमेश्वर पवित्र है और वो प्रकट किया गया है वचनों में, और वो शुरुआत में भी था और अभी भी है। He is awesome. और वो अद्भुत है। He is glorious. और वो महिमामय है। He is omnipotent. और वो हर जगह उपस्थित है। By trying to place him in any form is an insult to him. और किसी भी प्रतिमा में उसे देखना मतलब हम उसका अपमान कर रहे हैं। Deuteronomy 27 verse 15 says it. और व्यवस्था विवरण की किताब 27वें अध्याय वचन 15 में ये बात लिखी है। We brothers and sisters are Indians. और भाई और बहनों, हम भारतीय हैं। We come from a nation that has a history of involvement in the occult. और इस प्रकार की बातों में शामिल होना ये हमारा इतिहास रहा है। Occult means nothing but hidden or covered over. और अकॉल्ट इसका अर्थ ये है कि छिपा हुआ या जिसे हम ढाक लेते हैं। Now, the occult practices normally focus on the strongest cravings of human nature. और इस तरह के काम करना मतलब मनुष्य जाति का जो स्वभाव है या उनकी जो लालसाएं है उनके ऊपर ध्यान देना। Namely, the human nature desires for knowledge. और मनुष्य का जो स्वभाव है उनकी चाहत होती है कि वो बुद्धि हासिल करना चाहते हैं। And it also has the desire for power. और वो ताकत या सामर्थ भी हासिल करना चाहते हैं। Now, as long as we get this naturally, there is no problem to the soul. और अगर नैसर्गिक रूप से हमें ये सारी बातें मिल जाती है तो वहां पर परेशानी नहीं है। But being human, we are never satisfied. लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। And hence we are willing to indulge in the occult. और इसीलिए हम इस तरह के कामों में पड़ जाते हैं। We look for supernatural answers. और हम अलौकिक जवाब ढूंढने लगते हैं। It is good to look to God for an answer. और भला है कि हम परमेश्वर की ओर देखें किसी भी जवाब के लिए। Because that is the legitimate way. क्योंकि वही सही तरीका है। However, the devil also offers a counterfeit way. और लेकिन ऐसा है कि शत्रु भी एक तरीका हमारे सामने रखता है। To try to explain this a little more, और इसे और समझाने के लिए I like to share a part of my testimony. और मेरी गवाही का एक भाग मैं आपसे बताना चाहता हूँ। I was around 13 when I first met the Lord. मैं करीबन 13 वर्ष का था जब मेरी मुलाकात परमेश्वर से हुई। There were a lot of unanswered questions in my mind at that time. और मेरे मन में, मेरे दिमाग में उस समय में कई ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब मैं ढूंढ रहा था। I came from a Catholic background. और मैं कैथोलिक परिवार से आया। And it wasn't uncommon to light candles at the altar. और ये साधारण था हमारे लिए कि हम ऑल्टर के आगे मोमबत्ती जलाते थे। We had fixed standard prayers. और रोज एक ही प्रार्थना रटना ये हमारा जीवन था। And at all this was going on, I remember I lost my mom early in life. और जब ये सब हो रहा था मुझे याद है कि मेरी माँ गुजर गई जब मैं बहुत छोटा था। So it was very difficult to understand God through the practices that we followed. और जो चीजें हम करते थे उसके द्वारा परमेश्वर को समझना वो मेरे लिए बहुत कठिन था। I remember standing in front of the altar. और मुझे याद है कि मैं ऑल्टर के आगे खड़ा था। At the age of 8. 8 वर्ष का था मैं। Lighting candles when mom was in hospital. और मोमबत्तियां जलाता था और मेरी माँ अस्पताल में थी।
And it was a simple child's prayer saying, take my life, let her live. और छोटा बच्चा जैसे प्रार्थना करता है, बहुत ही साधारण, मैंने कहा प्रभु मेरा जीवन ले लो और मेरी माँ को जीने दो। However, just the reverse happened. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका विपरीत हुआ। And it created a gap between God and me. और इसके कारण परमेश्वर और मेरे बीच में एक दरार सी हो गई। It was something to do like there was anger as to why wasn't the prayer answered. और जैसे मेरे अंदर एक गुस्सा था कि मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दिया गया। I lost faith that there existed a living God. और मेरा विश्वास जैसे खो गया कि सच में क्या कोई जीवित परमेश्वर है भी क्या। I then started looking to people who were successful, और फिर मैं ऐसे लोगों की ओर देखने लगा जो कामयाब थे, made them my idols. और मैंने उन्हें मेरी मूर्ति बना दिया। I didn't realize at that time that those were idols. और उस समय मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि वो मूर्ति है। I only realized this much later when I was around 20 years of age. लेकिन ये मुझे तब पता चला, इसका एहसास हुआ जब मेरी उम्र करीबन 20 साल की थी। God had sent a team of ministers. और एक सेविकाओं की टीम परमेश्वर ने मेरे पास भेजी। They stayed with us in our home for almost 3 months. और करीबन 3 महीनों के लिए वो हमारे साथ हमारे घर पर रहे। They were people of prayer. और वो प्रार्थना करने वाले लोग थे। And I would see them kneel and pray for us. और मैं देखता था कि वो घुटने पर आके हमारे लिए प्रार्थना करते थे। There were hundreds of miracles, just like what the Bible said. और 100 चमत्कार थे, वैसे ही जैसे शास्त्र कहता है। And they ministered to me as the Holy Spirit led them. और जैसे पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करती थी, वैसे वो मेरी सेविकाएं करते थे। I repented from my anger towards God. और परमेश्वर की ओर मेरा जो गुस्सा था, उससे मैंने पश्चाताप किया। And I learned to walk with God by praying and reading His Word daily. और मैंने परमेश्वर के साथ चलना सीखा प्रार्थना के द्वारा और उसके वचन को प्रतिदिन पढ़ने के द्वारा। It is good to look at people that walk ahead of you. और अच्छा है ऐसी लोगों के और हम देखें जो हमारे आगे चलते हैं। Yet we got to keep our eyes focused on Jesus. लेकिन फिर भी हमारी नजर हमें यीशु पर केंद्रित रखनी है। Because He is the only way to the Father. क्योंकि पिता के पास जाने के लिए यीशु ही एक मार्ग है। I would like to read on from Romans. और मैं रोमियो की किताब से पढ़ना चाहूंगा। Romans 1:19 to 23. रोमियो का पहला अध्याय वचन 19 से 20। Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds and four-footed animals and creeping things. रोमियो 1 वचन 19 से 20। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। 1 Corinthians 10:18 to 22. और 1 कोरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 18 से 22। Observe Israel after the flesh. Are not those who eat of the sacrifices partakers of the altar? What am I saying then?
that an idol is anything, or what is offered to idols is anything. Rather, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink of the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. Or do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he? जो शरीर के भाव से इजरायली है, उनको देखो, क्या बलिदान के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। तुम परमेश्वर की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते हो। क्या हम प्रभु को रीस दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? These scriptures speak of our constant failure to love God due to our human nature. और हमारे मनुष्य स्वभाव के कारण जो हम लगातार परमेश्वर के वचन पर चलने में हार जाते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा है। To be in obedience to God, और परमेश्वर की ओर आज्ञाकारी होना, we need to crucify ourselves daily. उसके लिए हमें प्रतिदिन क्रूस पर अपने आप को चढ़ाना होगा। We need to submit all our thoughts, our deeds to God. और हमारे सारे विचार और हमारे सारे कामों को परमेश्वर को समर्पित करना होगा। We need to live according to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा। Our God is a God of love. और हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। John 3:16 is an example to the extent of his love for us. और यूहन्ना 3:16 परमेश्वर के प्रेम जो बड़ा महान प्रेम है उसका हमारे लिए उसके बारे में दर्शाता है। And God's love doesn't stop at the cross. और परमेश्वर का प्रेम क्रूस पर समाप्त नहीं होता है। In Acts 2 verses 38 and 39, he has promised the Holy Spirit to all those who believe in Jesus Christ. और प्रेरित के दूसरे अध्याय वचन 38 और 29 में उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें पवित्र आत्मा देगा। Jesus himself broke every curse by dying on the cross. और यीशु मसीह ने स्वयं हर एक श्राप को तोड़ दिया क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके। We need to acknowledge and accept this victory on the cross for ourselves to change. और हमें इसे समझना होगा और स्वीकारना होगा ये जो क्रूस पर बलिदान हुआ और जीत हुई ताकि हम बच जाए। Salvation received is only the first step to a life of walking with the loving Father. और उद्धार को पाना पिता के साथ, प्रेमी पिता के साथ जीवन चलने का पहला कदम है। We have been asked to walk in the Spirit, for the Holy Spirit will give us his gifts to overcome our flesh. और हमें कहा गया है कि हम आत्मा में चले ताकि पवित्र आत्मा हमें मदद करे हमारे सारे पापों से बाहर निकलने के लिए। Galatians 5:16 to 26. और गलातियों की किताब 5वां अध्याय वचन 16 से 26 It says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. गलातियों की किताब 5वां अध्याय वचन 16 से 26। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से दाह रखे। Amen. Yeah. In conclusion, I wish to leave you with a few questions. और अंत करते हुए मैं आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। Are we having any self-made idols or images in our lives or our minds? क्या हमने हमारे जीवन में या हमारे मन में ऐसी कोई मूर्तियां बना रखी है? Are we looking for saviors other than the Lord Jesus who will give us a quick solution to our problems? क्या हम ऐसा कोई हमें तभी के लिए बचा ले उसे ढूंढ रहे हैं, या यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं जो हमें हमारी संकटों से या परेशानियों से बाहर निकालेगा? Or are we wanting to live, walk with the Holy Spirit, and enjoy a loving relationship with our Heavenly Father, just as Adam lived in the Garden of Eden before man sinned? या हम चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए और पवित्र आत्मा के साथ जीवन जिए, और ऐसा प्रेमी रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था, जो अदन की वाटिका में था, उस तरह का रिश्ता हमारा भी हो। I leave you all with these questions because it is good at all times to check ourselves. और मैं आपको इन प्रश्नों के साथ छोड़ता हूँ, क्योंकि अच्छा है कि हम अपने आप को परखते रहे हमेशा। Lest we fall by the wayside. नहीं तो ऐसा होगा कि हम भटक जाएंगे। Keep praying continuously और लगातार प्रार्थना करते रहिए and ask God to guide us. और परमेश्वर से कहे कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। Thank you. And I would like to pray if everyone would like, we could pray and ask God to minister into our lives. If there's anything within that is still left, which is warring against the word of God. और मैं चाहूंगा कि हम प्रार्थना करें कि क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी है जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है या विरोध में चल रहा है, which forms itself as an idol and brings down God's wrath on our lives. और एक जैसे कि वो मूर्ति है हमारे जीवन में, और वो मूर्ति हमारे जीवन में परमेश्वर का कोप लेकर आती है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we bring before you ourselves. पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने लाते हैं। And we ask forgiveness, Lord. और हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। For things that we do knowingly or unknowingly, Lord. प्रभु, उन चीजों के लिए जो हम जानते हुए और अनजाने में करते हैं। Lord, we yield ourselves completely to you. प्रभु, हम अपने आप को पूरी तरह आपको सौंपते हैं। So that if there is any hidden idol or anything within us, Lord. ताकि प्रभु कोई छिपा हुआ मूर्ति है प्रभु, या हमारे अंदर कोई भी बात हो,
We ask you to take it away, O Lord Jesus. प्रभु हम मांगते हैं प्रभु से आप निकाल दीजिए, We yield it to you, Lord. हम आपको सौंपते हैं प्रभु। For Father, you said a broken spirit is worthy of your worship, Lord. आपने कहा एक टूटा हुआ हृदय आपकी आराधना के योग्य है। Lord, we bring ourselves to you, Lord. प्रभु हम अपने आप को आपके सामने लाते हैं। Today, Father, we do not look at what has happened in the days and the years that have gone by. प्रभु जो साल बीत गए परमेश्वर उनकी और हम नहीं देखना चाहते। And we ask you, Father, to take us on from here. हम मांगते हैं प्रभु आप यहाँ से हमें आगे ले जाइए। New creation that you are making us into. प्रभु वो नई रचना जो आप हमें बना रहे हैं। The new nature that will love you, Lord Jesus. प्रभु वो नया स्वभाव जो आपसे प्रेम रखेगा, That will love you in everything we do. जो आपसे हर एक कामों में प्रेम रखेगा। That will radiate you to those who do not know you. और प्रभु वो लोग आपको जानेंगे उसके द्वारा जो आपको नहीं जानते हैं। We ask you, Father, to fill us with your love, Lord. प्रभु हम मांगते हैं प्रभु के आपकी आत्मा से आपकी प्रेम से हमें भर दीजिए। With a hunger to love you and to love those who are around us, Lord. और प्रभु वो भूख हमें डालिए कि प्रभु हम आपसे प्रेम करेंगे और जो हमारे आसपास है उन लोगों से प्रेम In करेंगे। the manner and the way you want it to be, Lord. प्रभु उस तरीके से जैसे आप चाहते हैं। We want to glorify you and bless you today, Lord. प्रभु हम आपको महिमा देना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं। We thank you. In Jesus' name we pray. धन्यवाद यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। May the Lord bless you and keep you. प्रभु आपको संभाले रखे और आपको आशीष दे May the Lord make his face shine upon you और उसका चेहरा आपके ऊपर चमके and be gracious to you. और आपकी और अनुग्रही रहे May the Lord lift his countenance upon you और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे and give you shalom. और आपको शालोम दे। Amen. आमेन। Thank you. And as we end this meeting, I wish you all a very good week ahead. और शुक्रिया। और जैसे ये सभा समाप्त हो रही है, मैं कहूंगा कि आपका सप्ताह बहुत अच्छा रहे। And hope this week ahead brings a joyful time of walking with our Heavenly Father. और आशा करता हूँ ये आने वाला हफ्ता आनंदमय रहे आपके साथ, पिता के साथ आपका रिश्ता बढ़े और पिता के साथ आप चले। We will meet again the following Sunday at the same time out here. और आने वाले रविवार हम वही समय पर यहाँ पर मिलेंगे। Thank you. God bless. बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको आशीष दे। Translating.